اسٹوڈنٹس لاسٹ ٹائم جو ہم نے لیکچر لیا تھا پاکستان اسٹڈیز کا، اس میں ہم نے جو باتیں ڈسکس کی تھیں وہ تھا نظریہ پاکستان، اس کے اجزائے ترکیبی، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے بات کی تھی وہ تھی سر سید احمد خان کی خدمات پہ. اور آپ کو اگر یاد ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدمات میں سے صرف تعلیمی خدمات پہ سوال آتا ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ اس کی ادبی، معاشرتی، سیاسی خدمات کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. اب جو آج کا ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ. یعنی جب بر صغیر میں ایک سیاست کے میدان میں مسلمانوں نے اپنی بھرپور جو ان کی اٹینڈنس تھی یا ان کی پریزنٹیشن تھی، انہوں نے اپنی موجودگی کا احساس جو دلایا. ورنہ اس سے پہلے پالیٹکس چل رہی تھی، آپ جانتے ہیں کہ کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ پولیٹیکل پارٹی وہ کام کر رہی تھی، لیکن مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ ان کی اپنی پریزنٹیشن بھی ہونی چاہیے. تو ہمارا آل انڈیا مسلم لیگ کا جو ٹاپک ہے، اس میں جو کوشچن ہے وہ آپ کی ایکسرسائز جو آپ جانتے ہیں چیپٹر کے اینڈ میں ایکسرسائز ہے، اس میں کوشچن نمبر 4 ہے، اور وہ کوشچن ہے آل انڈیا مسلم لیگ کیوں وجود میں آئی اور اس کے قیام کے 5 مقاصد بیان کریں. یہ والا جو آپ کا کوشچن ہے یہ آپ کا بورڈ میں ایز اے لانگ کوشچن ایک دفعہ آ چکا ہوا ہے 2010 میں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اس سے متعلق آپ کے شارٹ کوشچنز، یعنی اگر آپ اپنی بکس پہ دیکھیں تو اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا جو ٹاپک ہے اس میں سب سے پہلے جو ڈیٹیلز ہیں اس میں ایک کوشچن بنتا ہے آل انڈیا مسلم لیگ کب اور کہاں بنی. اب اس میں آپ نے 2 چیزیں بیان کرنی ہیں کہ وہ پلیس اور جو اس وقت کا سال تھا، جو ٹائم تھا. تو اس میں صرف ایسے نہیں ہے کہ آپ صرف ڈائریکٹلی وہ ڈیٹ یا وہ جگہ بیان کر دیں گے. آپ کو جو کام کرنا ہے وہ آپ نے پراپر ایک سینٹینس فارمیشن میں آپ نے وہ چیز بیان کرنی. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو کوشچن ہے یہ ایز اے شارٹ کوشچن 2015 میں آ چکا ہوا ہے بورڈ میں، اور اس کے ساتھ ایز اے ایم سی کیو 2018 کے جو پیپر ہے آپ کا بورڈ کا 2018 کے بورڈ کے پیپر میں ایز اے ایم سی کیو آیا ہوا ہے. اس میں آپ سے انہوں نے جو اس کا جو قیام تھا اس سے متعلق پوچھا گیا ہے کہ وہ کہاں پہ جو تھی مسلم لیگ کا قیام کس جگہ پہ ہوا. تو آپ اس کے بارے میں یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد جو اس کا آنسر ہے وہ ہے 1906 میں ڈھاکہ میں. یہ 2 پوائنٹس 1906 اینڈ ڈھاکہ، یہ 2 پوائنٹس آپ کو پتا ہونے چاہیے. اس کو پراپر ایک سینٹینس فارمیشن میں لکھیے گا. آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ڈھاکہ کے پر ہوا. اب اس میں ایک پوائنٹ جو نہایت امپورٹنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جگہ دیکھیے ڈھاکہ. اب ڈھاکہ آج کے دور میں کس جگہ پہ موجود ہے آپ سب جانتے ہیں، بنگلہ دیش میں. تو اس کا جو کیپٹل ہے، اب اس میں ہم نے جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ جو جگہ تھی وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے امپورٹنٹ تھی کہ نہیں تھی. یعنی آج ہمارا پولیٹیکل سینیریو جو بھی ہو، آج ہم جس مرضی طریقے سمجھے، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ اس وقت کے جو ہمارے بھائی تھے ان کی کولیبریشن بہت زیادہ تھی. یعنی ڈھاکہ میں وہ ہمارے جو اس وقت کے بنگالی بھائی تھے ان کی بہت کولیبریشن تھی، ان کی مدد سے یہ وہ. اور ایک اور چیز ہم آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن صرف چونکہ یہ بات ہوئی ہے اس لیے میں یہ ضروری سمجھ آپ کو بتانا کہ جو آپ قرارداد پاکستان کی بات بھی پڑھتے ہیں، جو جس کو آپ جو قرارداد لاہور کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، تو وہ بھی ہم جب پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کس نے وہ پیش کی. وہ بھی شیر بنگال جو تھے اے کے فضل الحق ان کی طرف سے. تو جو بنگالی تھے ان کی کولیبریشن اس ٹائم پہ بہت زیادہ تھی. تو 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر مسلم لیگ کا قیام ہوا. پھر جو اس میں بات ہے جو آپ کو سمجھیں کہ اس کے پہلے صدر جو تھے وہ کس کو چوز کیا گیا، سر آغا خان. سر آغا خان جو تھے وہ مسلم لیگ کے پہلے صدر تھے. اور پھر اس کا جو مرکزی دفتر تھا وہ علی گڑھ میں ہوا، علی گڑھ میں قائم ہوا. اور اس کے ساتھ ہی جو برطانیہ میں بھی اس کی برانچ کھولی گئی. سید امیر علی جو تھے وہ برطانیہ میں جو مسلم لیگ کا آفس تھا اس کی صدارت ان کے پاس تھی. اب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی مسلم لیگ ہے، بر صغیر میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ بھی اس کا. تو آپ دیکھیے کہ بر صغیر میں اس وقت جو حکومت تھی وہ برطانیہ کی تھی. شاہی جو تاج برطانیہ کے نام سے جو کراؤن آف جو برٹش کراؤن تھا ان کی ہم حکمرانی تھی. سو ایٹ دیٹ ٹائم وی آلسو نیڈ آور پریزنس اوور دیئر ایز ویل، کہ وہاں پہ ان کی جگہ پہ ہماری اگر پریزنس ہوگی تبھی
वही हम अपने मुतालबा, आज का तो एक डिजिटल दौर है, हर चीज एक क्लिक पर आपके सामने मौजूद है, हर चीज आप अपनी आवाज दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। उस टाइम टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, तो लोगों की प्रेजेंस जो होती थी उससे डायरेक्टली वो अपनी बात को शो करते थे। तो बरतानिया में मुस्लिम लीग की एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी थी। इस वजह से जो हमने अभी बात की कि लंदन में उनका जो एक ऑफिस था डायरेक्टली, ताकि जो ब्रिटिश क्राउन है उन तक जो है वो मुसलमानों की बात पहुंचाई जा सके। फिर इसके साथ ही हम जो चीज देखते हैं कि आपका इसी क्वेश्चन में बात आती है मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब क्या थे, यानी व्हाट वर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ये आपका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन 2018 में आ चुका हुआ है। 2018 में ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है कि जिसमें आपने ये बताना है कि मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद जो थे वो असबाब क्या थे, असबाब रीजंस। देखिए कोई भी इवेंट होगा उसकी हैपनिंग से पहले एक सिनेरियो डेवलप होता है। कोई भी चीज है, आपके घर में अगर आपने कोई दावत किसी को बुलाया हुआ है, अपने रिलेटिव्स को, तो आप उससे पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं, सर खाने के मामला, घर की सफाई, डस्टिंग। अब एक आपके घर का फर्द आता है जिसको नहीं पता कि हमने आज दावत पे किसी को बुलाया हुआ है, तो वो जब ये तमाम मामला देखता है, घर मेरी सफाई हो रही है, डस्टिंग हो रही है, खाने पक रहे हैं, तो वो सारी जो चीजें वो देखेगा, उससे एक वो सिनेरियो उसके माइंड में डेवलप हो सकता है कि यार कोई खास बात होने वाली है आज, अभी उसको आपने बताया नहीं है कि हमने लोगों को इनवाइट किया हुआ है। तो जो आपकी सराउंडिंग्स में जो वाकयात होते हैं, जो आपकी प्रिपरेशंस होती हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये मिलकर एक किसी वाक़े के रूनमा होने का पहले से बताती हैं। तो जो असबाब हम देखते हैं, सबसे पहले बात देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, वो उसका हिंदुओं की जमात हो जाना। आप ये बात जानते होंगे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, ठीक है, बाद में। और एक और जो फैक्ट हिस्ट्री का ये है कि ही वाज एट द सेम टाइम इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, दोनों यानी जमातों में थे। बाद में उन्होंने वहां से एक जगह से कांग्रेस से छोड़ के फिर प्रॉपर्ली जो मुस्लिम लीग की तरफ उनकी वजह थी। लेकिन जो कांग्रेस थी वो पहले पॉलिटिकल पार्टी, तो वो अब एक तासुर जो था वो डेवलप हो रहा था कि ये जो कांग्रेस है ये सिर्फ हिंदुओं की एक जमात बनती हुई जा रही है, तो मुसलमान दे वर जस्ट फीलिंग लेट डाउन बाय द अदर थिंग्स। तो उससे उनको ये हो रहा था कि यार हमें अपनी प्रेजेंटेशन की जरूरत है। और उसके बाद जो आपकी है फिर एक फिरका वारियत का भी एक तसलसल मुख्तलिफ नौइयत का चल रहा था कि फिरका वारियत से क्या कि हम देखें कि अगर मुख्तलिफ फिरका गिरोह, पार्टीज, ग्रुप्स, अगर आप उस टाइम देखें तो 1800 के लेट 1800 में जो एक सिचुएशन थी वो ये होना शुरू हो गई थी कि जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज थी उनकी तरफ से ऐसे वाकयात हो रहे, जिससे मुसलमानों के ऊपर बड़ी प्रॉब्लमैटिक उनके लिए सिचुएशन हो गई थी। आर्या समाज नामी एक तंजीम थी, फिर महासंगठ सभा, ये मुख्तलिफ जो थी मुतशद्दिद इनको कहा जाता है कि एक्चुअली। और आप देखिए गौ रक्षा सभाएं कायम की गई, काउ प्रोटेक्शन यूनिट्स, इट वाज एट दैट टाइम इन द लेट 1800। तो आज यानी आज अगर आप आज के माशरे में देखें और अब भी यानी कुछ अर्सा पहले आप सीन एन आर्टिकल ऑन द इंटरनेट, तो उसके अंदर एक पिक्चर थी जिसमें उन्होंने एक न्यूज़ बताई हुई थी कि एक 3 या 4 बच्चों के बाप को गाय ज़िबा करने पर हिंदुस्तान में मार दिया गया। और वो उस आर्टिकल में जो पिक्चर शो हुई थी उसमें एक गाड़ी थी वीगो डाला टाइप का, उसके ऊपर वो हिंदू पॉलिटिकल जो थे आरएसएस के लोग बैठे, और उस कार के पीछे एक बहुत बड़ा एक स्पीकर लगा हुआ था, यानी उन्होंने टैग लगाया था जिसमें लिखा हुआ था काउ प्रोटेक्शन यूनिट। तो जब मैंने वो आर्टिकल देखा मैंने देखा कि यार इस 21वीं सदी आज के दौर में 2020s में अगर जो हम देखें कि स्टिल वो माइंडसेट मौजूद है और वो सेम चीज काउ प्रोटेक्शन यूनिट के नाम से 2020 में अगर वो एक्टिव है, तो शुरुआत 1800 में या उसके वक्त हुई, तो वो गांव रक्षा सभाएं, काउ प्रोटेक्शन यूनिट्स आर स्टिल देयर, ठीक है, क्योंकि आप वो जानते हैं कि उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ उस चीज को यानी वो एक जो बीफ का और उनके यहाँ के वो उनको एक मुकद्दस इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बहुत ज्यादा एफिलिएशन है और हमारे मुसलमानों के साथ इसी वजह से टसल उनकी ये चल रही है। तो ये फिरका वारियत का बड़ा एक प्रॉब्लम था। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि तकसीम बंगाल को दो
तकसीम किया गया, इसका फायदा मुसलमानों को तो नो डाउट हुआ, लेकिन जो हिंदू थे हिंदुस्तान के, उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज उस टाइम पे जो प्रॉब्लम थी कि देखिए एक जब उसकी तकसीम हुई तो एक हिस्सा चला गया जो कि मेजॉरिटी वाले थे बंगाल के जो मुसलमान थे, और एक था जो हिंदू थे। अब जिस जगह पे मेजॉरिटी में मुसलमान होंगे, ठीक है, वहां पे उनके लिए काफी हद तक आसानी हो सकती है, दे हैव अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन ओवर देयर, उनके एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, वो अपने हकूक के जो मुतालबात हैं उनके लिए कई मामला कर सकते हैं। तो ये जो चीजें होती थी ये साथ साथ देखने वाली थी। तो ये जो तकसीम बंगाल की चीज थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और फिर उसके बाद आप देखिए उर्दू हिंदी तनाज़ा, जो उर्दू हिंदी तनाज़ा के उर्दू आप जानते हैं जो जुबान है वो एक जो लश्करी जुबान थी उसका जो फरोग हिंदुस्तान में हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक लैंग्वेज की बजाय मुस्लिम लैंग्वेज के नाम से जाना शुरू किया। आज भी अगर आप देखते हो मीडिया पे, बॉलीवुड में और इधर उधर जब आप देखते हो तो किसी मुसलमान इलाके को दिखाया जाता है, सो दे शोड ऑन द वॉल्स कि जी उर्दू लिखी हुई है, या जो वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं वो जी उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू लिखे। तो उर्दू को आज के दौर में भी एक मुस्लिम लैंग्वेज के तौर पे हिंदुस्तान में जाया जा रहा है कि जी ये एक मुसलमान लैंग्वेज। तो मुसलमानों की एफिलिएशन बढ़ी थी, जबकि आप देखते हैं मुसलमानों की असल जुबान तो अरबी है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जो जुबान थी उनकी इंपॉर्टेंस उर्दू ज्यादा थी। तो वो जो हिंदू थे दे वर नॉट हैप्पी विद दैट, सो वो उनको होता था कि देवनागरी रस्मुल खत जो है वो हम उसको राइज करवा दें, और उससे जो चीज हम नई डेवलप करें कि हिंदी को फरोग दिया जाए आज कम्पेयर टू उर्दू। ये एक उर्दू हिंदी तनाज़ा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट था उस टाइम पे कि मुसलमान ये सोच रहे थे कि यार हमारा इतना बातें आगे फॉलो नहीं की जा रही। और फिर सियासी इस्लाहात हुई, जो लिबरल पार्टी थी बरतानिया में वो बरसरे इक़्तिदार आई, उसके आने के बाद उन्होंने कई जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, सियासी इस्लाहात की, उसकी वजह से भी जो मुसलमान लेट डाउन हुए और उनको आगे हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। फिर शिमला वक्त एक गया, और शिमला वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि इसके ऊपर बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आ चुके हुए हैं। 2018 में एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि कब और किसकी क़यादत में शिमला वक्त लॉर्ड मेंटोर से मिला। तो आपने जो क़यादत थी उसका बताना है, और वो जो और इसी के साथ एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि शिमला वक्त में मुसलमानों के लीडर कौन थे। ये वाला आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये 2009 में आया हुआ है। तो इनके जो आंसर हैं वो आप जानते हैं, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। सर आगा खान की क़यादत में मुसलमानों का एक नुमाइंदा वफ्द 1 अक्टूबर 1906 को बरतानवी वाइसरॉय लॉर्ड मेंटोर से मिला। तो बेटा ये आपने ये डेट जरूर याद रखनी है, 1 अक्टूबर 1906 एंड द नेम दैट इज सर आगा खान, जो मुसलमानों का वफ्द था, ठीक है, उनकी क्या। तो ये आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन शिमला वफ्द से मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो क्वेश्चन आता है वो है मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद बताइए। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन अब तक जो है वो बोर्ड में आ चुका हुआ है 2006, 9, 10, 11 एंड 16 में, यानी आपके 5 दफा अब तक ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका हुआ है, जिसमें मुस्लिम लीग के जो मकासद पूछे गए कि क़याम क्यों हुआ। यानी अभी देखिए आपने मिक्सअप नहीं करना बेटा, पहले आपने देखा था असबाब, reasons for the formation of all India Muslim League. Now the purpose क्या था, असबाब जो reasons बन रहे थे, उस सिनेरियो था, उस जगह था, क्या वजूहात थी, क्या हो रहा था, हमने क्यों बनानी है। अब जब बन गई है या हम बनाने वाले हैं तो हमने फ्यूचर में क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा पर्पस क्या है। एंड दैट पर्पस, ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप देखिए हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात इस्तेमाल करना और मुसलमानों में वफादारी के जज्बात। इनको आप 2 पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है। जो फर्स्ट पॉइंट है कि मुसलमानों और गवर्नमेंट, यानी आप देखिए कि उस टाइम पे मुसलमान दे डोंट वांट एनी टसल बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द पीपल इन द गवर्नमेंट, दैट वाज द ब्रिटिशर्स। वो आपस में टसल नहीं चाहते थे, वो लड़ाई झगड़ा नहीं, जब वो चाहते थे कि यार जितना हम खरीद, क्योंकि जो आप पहले पढ़ चुके हैं तहरीक वो जो एक मुसलमानों की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो प्रॉब्लम हुई, हमने तहरीक अलीगढ़ देखा, सर सैयद की खिदमत में देखा, तो मुसलमान बहुत पीछे रह गए थे, हिंदू अंग्रेज के बहुत करीब होता हुआ जा रहा था। अब वहां पे जो प्रॉब्लम मुसलमानों को ये फेस हो रही थी कि यार हमें आगे बढ़ना है तो हमें हुकूमत वक्त के साथ
लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो इनका मकसद था अच्छे ताल्लुकात हो, मुसलमानों वफादारी विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि भाई हम आपके खैर ख्वाह हैं, वी आर नॉट योर एनिमीज, सो हमें हमारे हकूक मिलने चाहिए, हमें हमारे हकूक से दस्तबरदार ना करें। इसके साथ आप देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, बरसगीर की दीगर अक़वाम और सियासी जमातों से इज्तिमाई भलाई के लिए राब्ते, यानी there were other political parties as well, there were other major parties as well, if they were not political they were religious, तो उनके साथ आपने इज्तिमाई कलेक्टिव लेवल पे जो वेलफेयर का एक जो सिचुएशन है उसके मुताबिक काम करना है, यानी सबको लेके साथ चलना है, सबके साथ राब्ते होने चाहिए। और फिर इसी के साथ हम जो नेक्स्ट पॉइंट है कि मुस्लिम जो कौम है उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना और उस मकसद के लिए हुकूमत और दीगर हलकों के साथ मिलजुल कर रहना, उनके साथ काम करना। तो यहाँ से हमें वो चीज़ जो है वो ज़रूरी इस बात का पता लगता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये वो सारे पॉइंट्स हैं। अब अक्सर हम ये देखते हैं कि बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो इसके क़याम के मकासद बताते हैं स्ट्रेट अवे वो काम ये कर दे रहे हैं। मुस्लिम लीग के क़याम के मकासद में था एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत बनाना। देखिए कहीं भी ये पॉइंट है? नहीं है। आप अपनी बुक्स पे देखिए, आपको कहीं पे वो पॉइंट मिलेगा? नहीं है। तो बेटा खुदारा ये चीज मत लिखिएगा। अक्सर जब पेपर चेक किया जाता है ये मिस्टेक बार बार होती है, बार बार बताया जाता है, बच्चे बार बार करते थे क्योंकि उनके माइंड में होता है मुस्लिम लीग बनाई इसलिए गई थी, नया पाकिस्तान बना था, एक मुल्क हमें चाहिए था जिसका नाम हमने पाकिस्तान सोचा। उस टाइम पे ये नहीं था, उस टाइम पे ये था कि आपके मामलात दुरुस्त हों, आपके हालात दुरुस्त हों, आपने इज्तिमाई भलाई के साथ लेकर चलना है। बाद में फिर they need a separate nation, हम आगे जाके देखेंगे, and that was very important, but in the beginning it was not in the agenda। उसमें तो ये याद रखिए इन पॉइंट्स में ये बात बिल्कुल बेटा शामिल मत कीजिएगा कि वो था। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है तहरीके खिलाफत। अब तहरीके खिलाफत जो है वो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक तहरीक ने जन्म लिया। अब ये जो तहरीके खिलाफत थी, क्या खिलाफत मूवमेंट इसको कहा जाता है, इसकी थोड़ी सी अगर हम बैकग्राउंड देखें उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपका जो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, तहरीके खिलाफत का आगाज क्यों हुआ और इस तहरीक के 3 मकासद बयान करें। और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये बोर्ड में 3 दफा आ चुका हुआ है, 2007, 9 and 14, ठीक है। 2007, 9 और 14 में ये आपका सवाल आ चुका है। अब इसमें बात ये देखने की सबसे पहले क्या पॉइंट था कि जंगे अजीम अव्वल जिसको आप वर्ल्ड वॉर 1, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको बोर्ड में एमसीक्यू भी आए हुए हैं, आपको आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको जो वर्ल्ड वॉर्स थी, जो जंगे अजीम थी, उनका बेटा आपको डेट्स याद होना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914, ठीक है, 1914 से 1919, और फिर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945। ये 2 डेट्स आप हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, आपको मजीद इसका आइडिया हो जाएगा। तो ये 2 डेट्स आप जरूर याद रखिएगा, कब स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई वर्ल्ड वॉर 1 एंड देन वर्ल्ड वॉर 2 व्हेन इट वाज स्टार्टेड एंड देन व्हेन इट फिनिश्ड एंड व्हेन दे कंक्लूडेड ऑल द वॉर। तो जो जंग अजीम अव्वल, अब उसमें क्या था, देखिए ये जंग अजीम हम क्यों बोलते हैं, इसमें इट्स नॉट लाइक अ वॉर बिटवीन 2 कंट्रीज, It was a war between several countries। अब जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक दूसरे ममालिक के साथ लड़ते हैं तो एक टीम बना ली जाती है। जैसे अक्सर आप लोग रेसलिंग में देखते हैं, they were tag team partners। तो एक बंदा अगर रिंग के अंदर है और 2 बंदे रिंग से बाहर हैं, so one guy gonna fight the person in the ring and then he gonna tap his partner and then that person gonna jump in the ring and then they gonna fight। तो जो टैग टीम का कॉन्सेप्ट है कि टीम मेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह आपने रनिंग में देखा होगा, जो अक्सर ओलंपिक्स में भी जाते हैं, एक शख्स भाग रहा है उसके हाथ में वो चीज़ आगे जाके दूसरे को देगा, इसी तरह यानी टीम्स के तौर पे। तो ममालिक भी टीम्स के तौर पे लड़ते। वो आज का सिनेरियो जरा और हो गया, जैसे जब से हमने 9/11 का वाकया देखा तो उसमें ये सिचुएशन उसके बाद होना शुरू हो गई कि देयर वर मैनी कंट्रीज अगेंस्ट अ सिंगल कंट्री, सो वी कैन कॉल इट अ वर्ल्ड वॉर इन दैट सेंस, बट इट इज अ वर्ल्ड वॉर कि जी आप देखिए कि तमाम ममालिक मिलकर किसी एक मुल्क पर जुल्म कर दें। वो आजकल के सिनेरियो में जैसे अफगानिस्तान पे हुआ, इराक पे हुआ, लिबिया पे हुआ, तो ये जो मुजालिम हुए ये वो
मुख्तलिफ ममालिक ने मिलकर दूसरे एक मुल्क के खिलाफ किया, बट उस टाइम पे टीम्स होती थी। जैसे फर्स्ट जो टीम थी उसमें जो मेंबर्स थे आप देखिए, उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका एंड रशिया, ये ममालिक जो थे बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका और रूस, और जो दूसरी साइड पे टीम थी उसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ठीक है। तो ये तीन ममालिक और इधर ये वाले ममालिक। अब इनका मसला ये था कि इनके साथ जब अगर ये टीम जीतती है तो ये तमाम ममालिक जीतेंगे, ये टीम जीतेगी तमाम ममालिक जीतेंगे। तो टर्की और सिर्फ जर्मनी का आप जानते हैं नाजीज का जो इशू, हिटलर का जो एक बहुत बड़ा इशू था, हिटलर को जर्मनी में जो इतना पसंद नहीं किया जासूस की, यानी दूसरे ममालिक में सॉरी उसको नहीं किया जा रहा था, और वही एक तासुर था जिसकी वजह से जो जर्मन्स हैं वो इतना दे फील एम्बैरेस बिकॉज ऑफ देयर हिस्ट्री कि स्टिल वो हिटलर को जो है वो एक अलग चीज है, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या वो सही थी गलत थी, वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन जो बताने का मकसद है कि ये जो टीम थी इसकी हमारे लिए इंपॉर्टेंस ज्यादा थी बिकॉज ऑफ टर्की। टर्की क्यों? क्योंकि उस वक्त वहां पे कालिफेट थी, खिलाफत मौजूद थी, खिलाफत उस्मानिया, और उसकी एक मुसलमानों के साथ एक दिली वाबस्तगी जुड़ी हुई थी। और चूंकि हमारा ईमान है, हमारा जज्बा है, तो अगर तुर्की में कोई प्रॉब्लम होती तो उसका डायरेक्टली असर मुसलमानों पे, चाहे वो कहीं पे भी उनके दिलों पे होना था, और ये वो रीजन थी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने की। और फिर उसके बाद हम देखते हैं चीज कि जो टर्की था, टर्की में खिलाफत उस्मानिया उनका कंट्रोल उनके सरहद मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका तक फैली हुई थी, और इसके साथ साथ हिजाज़ मुक़द्दस, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा भी उनकी जो कंट्रोल था, और ये टर्की का था। तो इस वजह से मुसलमानों का स्पेशली, चाहे बाकी हो या ना हो, खिलाफत की वजह से, ठीक है। और दूसरी बात थी कि मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा की वजह से भी हमारे जो मुसलमान थे बरसगीर के, उनकी दिली वाबस्तगियां बहुत ज्यादा थी। 1919 में तहरीक स्टार्ट की गई, खिलाफत मूवमेंट, उसका मकसद वही चीज जो आप देखिए कि हमारी उनके साथ वाबस्तगियां थी। अब इसमें जो एक आपका क्वेश्चन आता है, तहरीक के कायदीन के नाम बताइए। तो तहरीक के कायदीन के नाम क्वेश्चन आपको आ सकता है, तहरीक खिलाफत में मुसलमानों की रहनुमाई करने वाली शख्सियात के नाम बताएं। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको 2015 में एक दफा आया हुआ बोर्ड में, और इसका जो आंसर है आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना जफर अली खान, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, ये तमाम नाम है। कोशिश करके अगर सारे याद हो सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में बोर्ड में आपको ये भी हो सकता है 2 नाम पूछे जाएं, ये भी हो सकता है 4 नाम पूछे जाएं, बट क्या पता अगर वो सिंपल आप कर दें 5 नाम बता देते, तो आपको ये कोशिश करके बेटा ये सारे नाम याद रखिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो दीज वर द पर्सनालिटीज जिन्होंने उस टाइम पे उसके अंदर अपना मौसर किरदार अदा किया। फिर इसके साथ हम देखते हैं कि तहरीक के मकासद क्या थे। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में 2006, 9 और 9 से लेके ऑनवर्ड टिल 16, दैट मींस 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2006 में आया, फिर 2009 में आया, और फिर 9 से लगातार 2016 तक आता रहा ये सवाल लगातार बोर्ड में, जिसमें आपसे तहरीक खिलाफत के मकासद पूछे गए कि मकसद क्या थे। अब इसमें एक और चीज मैं बताता चलूं, अक्सर पेपर्स में बेटा ये प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। तहरीक खिलाफत के मकासद में हमारे होनहार तलबा और तालिबात बड़ी खूबसूरती से ये मकसद बयान कर देते हैं कि तहरीक खिलाफत का मकसद एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत बनाना था जिसका नाम पाकिस्तान था। तो बेटा पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट तब तक नहीं था। काइंडली आप में सबसे ये गुजारिश है कि आप सब इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर ना बनिएगा, जो चीज आपको बुक में मिलती है या आपको पढ़ाई जाती है उसी पर फोकस करें, ठीक है। दूसरी चीजें हम इंशाल्लाह बाद में भी कभी हम क्लास में डिस्कस कर लें, वो और बात है, लेकिन इसमें शामिल नहीं है तहरीक खिलाफत में, ठीक है। इसके मकासद में जो है वो था तुर्की बहैसियत एक मुमलिकत कायम रहेगी, शिकस्त की सूरत में इसकी जोग्राफी आएगी, सरहदें जू की तू रहेंगी, इसके टुकड़े नहीं किए जाएंगे, जो खलीफा हैं मुसलमानों के वो मौजूद रहेंगे, तुर्की में खिलाफत का इदारा अपनी हैसियत में रहेगा, जो ओरिजिनल उसकी हैसियत है वो उसी में रहेगा, और फिर हिजाज मुकद्दस की हुर्मत पर कोई आंच नहीं आएगी। गैर मुस्लिम अफवाज दोनों शहरों में, दोनों शहर कौन से हैं अभी मैंने जिक्र किया, ठीक है, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा, इन दोनों शहरों में गैर मुल्की अफवाज दाखिल नहीं होंगी। क्यों दाखिल नहीं होंगी? ये हमारा बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है मुसलमानों का। आप देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है बेटा। उस टाइम एक सिचुएशन पर थी, यार गैर मुल्की ने अगर कब्जा कर लिया ये क्या हशर कर देंगे,
یہ کس طریقے سے وہ جو اس کی جغرافی ہے، اس کی جغرافیکل اس کی جو حیثیت ہے اس کو کیسے تہس نہس کر دیں گے، اس کے اندر کیسے وہ جو ان کی بے حرمتی کریں گے. تو مسلمانوں کا بہت امپورٹنٹ کنسرن تھا. تو یہ وہ مقاصد تھے، ان کو آپ نے ایز اٹ از لکھنا ہے. اینڈ دین اس کی ایکٹیویٹیز، تحریک کی سرگرمیاں کیا تھیں، مختلف نوعیت کے کام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف وفود جو وفد تھے یورپی ممالک میں بھیجے گئے، اسپیشلی برطانیہ اس لیے بھیجے گئے کیونکہ برٹش گورنمنٹ کی حکومت تھی جو برِ صغیر میں. پھر ڈاکٹرز اور نرسز کے گروپس، جو ٹرکش ہمارے جو سولجرز تھے، جو ہمارے مجاہدین تھے، ان کی مدد کے لیے ہم نے میڈیسنز بھیجی. ٹرک جو گورنمنٹ تھی ان کو ہم نے رقوم بھیجی، پیسوں کی ان کو مدد کی. پھر جتنا لوگ کر سکیں گے، آپ جانتے ہیں ہمارے برِ صغیر کے لوگ جو دل کے بہت اچھے ہیں کہ they want to give charity a lot، جو صدقہ خیرات اور اس طرح کی دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ جو ہمارے اندر ہوتا ہے. تو لوگوں نے یہاں پر سونا چاندی دوسری چیزیں بھی وہاں پہ بھیجی. پھر جلوس نکالے گئے، بڑی بڑی گرفتاریاں ہوئی، جیلوں میں لوگ گئے. تحریک خلافت میں جو ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ تھی، یہ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ دیکھیے کہ جس میں مولانا محمد علی جوہر جو تھے اور مولانا شوکت علی جو تھے، ان کی والدہ کا بڑا امپورٹنٹ ایک ایکٹیو رول تھا. اینڈ دیٹ واز کہ جی ان کی اماں کا کردار یہ تھا، ایک نعرہ مشہور ہو گیا، کہتی ہے اماں محمد علی کی جان بیٹا اپنی خلافت پر دے دو. دیکھو نا ڈفرینٹ طریقوں کے سلوگنز مشہور ہو جاتے ہیں. جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں، کسی بھی چیز کی ہیپننگ کے لیے اس سے پہلے ایک سلوگنز مشہور ہو جاتے ہیں. وہ سلوگنز ہی پھر ان کی جو پارٹی میں نعروں کے طور پہ لگیں گے. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ ہوتے ہیں، آپ نے سنے ہوں گے نعرے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ڈفرینٹ قسم کے نعرے ہوتے ہیں. تو وہ جو اس وقت کا تھا، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے وہ نعرہ بڑا مشہور، جیسے باہر میں چلتے جی روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی ہے، اس طرح کا مختلف قسم کے سلوگنز ہم پولیٹیکل جو گیدرنگز ہوتی ہیں ان میں سنتے تھے. تو وہ پھر لوگوں کے مائنڈ میں ایسی یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں کہ وہ پھر لوگ نارمل روٹین میں اسی کی بیس پر اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو یہ محمد علی کی اماں کا جو ایک سلوگن تھا کہ جان بیٹا اپنے خلاف، کہ آپ کی جان دیٹ از ناٹ مچ امپورٹنس ایز کمپیئر ٹو دا خلافت. تو خلافت پہ آپ نے یہ چیز دے دینی. پھر ہمارا جو مسلم جرنلزم تھا دیٹ واز ویری مچ امپورٹنٹ ایٹ دیٹ ٹائم ایز ویل، کہ جو آپ کا مسلم صحافت تھی اس نے کہا مولانا محمد علی مولانا ظفر علی خان کا جو ایک نیوز پیپر زمیندار، اور پھر الہلال، اور مولانا محمد علی جوہر کا تھا کامریڈ اور ہمدرد، ان کے ذریعے بھی بات آگے پہنچائے گی. بیکاز یو نو ایٹ دیٹ ٹائم there was no social media, there was no other things, electronic media was not that much in the subcontinent. ہمارے پاکستان میں اگر آپ دیکھو تو 1964 میں 60s میں جا کے ٹی وی شروع ہوا ہمارے. اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ دیکھیں آپ، آج تو آپ کا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اینڈ دین سوشل میڈیا از ویری ایکٹیو، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم جو آپ کا پرنٹ میڈیا تھا وہ اپنا رول ادا کرتا تھا. تو مسلم جرنلزم جو تھا وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے آگے چلا، اور اس کے ذریعے یہ سارے. اور اس کے اوپر آپ کو شارٹ کوشچن آ سکتا ہے، اس میں ضرور بیٹا یہ نام یاد رکھیے گا کہ کس پرسنالٹی کا کون سا پیپر تھا. ٹھیک ہے، یعنی مولانا ظفر علی خان کا زمیندار اور مولانا آزاد کا الہلال. یہ نام آپ نے بیٹا ایز اٹ از یاد کرنے ہیں. زمیندار اگر آپ کو آ جائے ایم سی کیو میں کہ زمیندار کس کا تھا، ظفر علی خان صاحب کا. ٹھیک ہے، الہلال مولانا آزاد صاحب کا. مولانا محمد علی جوہر کا کامریڈ اور ہمدرد. یہ پوائنٹس آپ کو ایز اٹ از یاد ہونے چاہیے، آپ بھی اس میں آ سکتے ہیں. اینڈ دین there was the role of Gandhi in the تحریک خلافت موومنٹ میں. گاندھی کا جو کردار تھا اس کے اوپر بیٹا آپ کو شارٹ کوشچن آیا ہوا ہے بورڈ میں، اور یہ جو شارٹ کوشچن ہے یہ 2006 اور 15 میں 2 سال میں آپ کو یہ کوشچن آیا ہوا ہے. تو گاندھی کا کردار اس ٹائم پہ امپورٹنٹ تھا. یہ آپ کا لکھا کہ اس میں جو اس نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ ہم ایسا حکومت کی طرف سے جو آپ کو القابات دیے گئے ہیں، جو آپ کو ٹائٹلز دیے ہیں واپس کر دو، جو آپ کی سرکاری ملازمتیں ہیں اسے استعفیٰ دے دو، تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پہ آ جو گرفتاریاں دے دو، محصول آپ کے جو ٹیکسز ہیں یہ اسٹف نہ دو، سول نافرمانی، یہ مختلف چیزیں. پھر اس میں پوائنٹ یہ ہوا کہ ہمارے جو معصوم مسلمان تھے ان کو یہ بھی کہا گیا کہ بھائی یہ تو اب یہ آپ کے خلاف چل رہا ہے، آپ ایسا کرو یہاں سے ہجرت کرو، کسی مسلمان ملک چلے جاؤ. اور پھر ہمارے جو مسلمان تھے جو جذبات سے سرشار ہو کر انہوں نے اپنا بوریا بستر اٹھایا، انہوں نے لولی چل گئی. دے وینٹ ٹو افغانستان چل گئے بڑی امیدوں کے ساتھ کہ ہمارے مسلمان بھائی باہیں پھیلائے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے کہ لٹے پھوٹے مسلمان ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم ان کو اپنی آغوش میں لے کر ان کو وہ تمام سہولتیں دیں جو ماں اپنے بچے کو دیتی ہے. لیکن جو شاہ افغانستان تھا انہوں نے اتنا اچھا برتاؤ کیا، انہوں نے وہیں سے ہمیں واپس بھیج دیا. انہوں نے کہا کدھر آئے ہو، اپنے نکل جاؤ، اپنے کام چلو، ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہ وہی ہیں، ہم دیکھیں کہ وہ مسلمان بھی وہی دیکھیں جب
पार्टीशन हुई, ठीक है, लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए, दे हैव अ होप कि भाई हम आगे जाएंगे यार, आगे जमीन हम कहीं ना रह तो लेंगे ना, जमीन तो है ना, वहां से कोई धक्के मार के तो नहीं निकालेगा। इन बेचारों के साथ क्या हुआ, ना इनको जिक्र होता है ना कोई बात करते हैं, ये वैसे वापस आ गए। अब जब ये वापस आए तो सोचें इनका हशर क्या हुआ होगा वहां पे, किस सिचुएशन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके साथ बिहेव किया होगा, हिंदुओं ने कैसा बिहेव किया, तो दैट वाज वेरी टफ टाइम फॉर द मुस्लिम्स ओवर देयर। तो हमें इस बात का ये समझना चाहिए। और फिर आपका तहरीक का अंजाम, जो तहरीक जो थी उसका एंड क्या हुआ, एक सानिया चौराचौरी के नाम से हुआ, यानी इसमें आप देखते हैं कि 5 फरवरी 1922 को देखें, जो मुसलमानों की तहरीक, मुसलमान कायदीन को, काफियों को जेलों में बंद किया गया, तहरीकें शुरू हो गई, लोग जज्बाती हो गए, सड़कों पर निकल आए, हजूम निकला, उन्होंने जी प्रोटेस्ट किए। फिर जब गिरफ्तारी हुई तो एक लोग मुतशद हो गए, उन्होंने फिर ये 5 फरवरी 1922 को उन्होंने जो हमला कर दिया, और फिर एक जो थाना था उसको नजरियातिश किया, 22 के करीब जो सिपाही थे वो जिंदा जलाकर मार दिए गए। तो एक वो सिचुएशन डेवलप हो। इसके बाद क्या हुआ था कि जो गांधी था, गांधी जो था तहरीक खिलाफत को लीड कर रहा था, तो उसने उसके बाद कहा कि भाई अब ये एक मुतशद्दिद तहरीक हो गई है, अब ये वायलेंस की तरफ, और मैं वायलेंस के खिलाफ हूँ, तो हम इसको खत्म करते हैं। तो दैट वाज द रीजन। एंड देन देयर वाज मुआहिदा लौज़ान जो था, वो आप जानते हैं कि 1924 में हुआ, 100 years agreement between the Turks and the Allied forces, क्योंकि उसके बाद वो जो थी वो जीत जब गई तो फिर टर्की का हाल बड़ा। और फिर सबसे प्रॉब्लम एक हुई कि जो टर्किश जनरल था, ठीक है, अब हम ये चीज देखते हैं कि मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि भाई उनका जो अपना वो जो ना कमाल पाशा था, तो जो था उसी ने जो था वो खिलाफत को अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। अब जब वो चीज ही खत्म हो गई जिसकी बेस पे इतना बड़ी तहरीक स्टार्ट की, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? मुसलमान बेचारे, इनके पास तो चॉइस ही नहीं रही ना, जो हिंदुस्तान के